Hi dear students, I'm back after a very long time, but unfortunately I was unavailable for you. Today I am going to teach you about the first chapter of the chemistry, that is named chemical reactions and equations. Okay, chemical reactions and equations, first chapter of science, that is first chapter of chemistry, isn't it? Okay. Now first place the heading chemistry. Have you placed the heading chemistry? The study of internal structure and composition of anything and its internal bondings, its internal bonding is called chemistry. Have you written this? Now write, father of chemistry is father of chemistry is L. A. Lavoisier. Lewis Anthony Lavoisier. Lewis Anthony Lavoisier. Okay, have you written this? Have you placed now place the heading chemistry again and write the flow chart. Okay, actually just understand me. There are three parts of chemistry. Not right now. Just listen to me. There are three parts of chemistry. That is organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. Okay, what are they? Organic chemistry, inorganic chemistry, and third one is physical chemistry. Now listen to me and try to write that I am showing you. I think you are able to look at it or not. Just like you may do. Okay, are you looking on it? I know that it's optical lateralism. Now you may understand what may I say. There are three types of chemistry, that are what? Organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. Now listen, right below organic chemistry कि क्या पढ़ेंगे उसमें. Here we study about the compounds and the nature of compounds related to carbon, oxygen, and hydrogen. Okay. Now right below the inorganic chemistry. Here we studied about compounds and nature of compounds except nature of compounds constituted without carbon, hydrogen, and oxygen. Both of three, not one of them. Okay. Physical chemistry. Here we will study about internal phenomena of any chemical substance. Okay. Now listen to me. Place the heading organic chemistry. Place the heading organic chemistry. Have you placed it? Now listen to me. Right. Most of the organic compounds are natural. Most of the organic compounds are natural. Example: protein, urea, cellulose, carbohydrates, starch, etc. Have you written this?
Now write below the first organic substance constituted. The first organic substance constituted was urea. U-R-E-A. Urea. Formula is NH2CONH2. Formula is NH2CONH2. Okay, have you written? This was the first organic compound prepared. What? That is urea, NH2CONH2. Right. अब ये पूछा जाएगा कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको बनाया किसने, तो लिखना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय वॉलर, WOHLER, वॉलर. Have you written this? Now come inorganic chemistry. लिखना. Have you placed the heading inorganic chemistry? Okay. लिखना. Some inorganic compounds are NaCl, ब्रैकेट में नाम लिखना. सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट क्लोज. ब्लू विट्रॉल, CuSO4, blue vitriol. Okay. Magnetite, Fe3O4. Okay. Marble, CaCO3, etc. These are inorganic compounds. Now place physical chemistry. Okay. Have you placed that in physical chemistry? Okay. Now write. Here we will learn about the nature of elements such as electronegativity, electropositivity, reactivity order, etc. क्लियर है. नाउ हमने अब जो है केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था समझ गए हैं. अब जो फर्स्ट चैप्टर है द नेम इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ऑब्वियसली किसमें फॉल करेगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ओके. हैव यू प्लेस्ड द हेडिंग द नेम ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. तो सबसे पहले जो इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है. व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस. ओके. देखिए सिंपल सी बात है, एक ऐसा रिएक्शन जो कि केमिकली हो, यानी जिसमें जो रिजल्ट हो वो उसको इनिशियल से कोई मतलब नहीं. देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है ऐसा रिएक्शन जो आफ्टर द रिएक्शन उसके जो रिजल्ट है उसको इनिशियल रिएक्टेंट से, मतलब कि इनिशियल जिससे मिलके हो रहा था रिएक्शन, उससे कोई फर्क ना पड़े, कोई मतलब उससे नेचर ही ना मिले उसका, एकदम न्यू सा हो, तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया. इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम नोटबुक पे लिखते हैं ना, जैसे कि Na+Cl गिव्स NaCl, ये जो लिखा हमने, इस लिखावट को हमने कहा केमिकल इक्वेशन, और जो हमने रिएक्शन किया लेबोरेटरी में, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टैंड इट. नाउ राइट द हेडिंग, प्लेस द हेडिंग एंड राइट केमिकल रिएक्शन. Have you please? Right. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. Simple. Para change. After chemical reaction, new substance is formed different from initial substance. जो नया सब्सटेंस बनेगा वो इनिशियल सब्सटेंस से अलग होगा. एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखा रहे हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल,
burning of candle, burning of anything, setting of milk into cottage cheese, setting of milk into cottage cheese or ghee, comma, digestion of food, respiration, formation of image in our eye. These all are chemical reactions. Understand it? Okay. Uh, Now I have said you what does means of chemical reaction. Okay. Now write the heading chemical equation, or normally 1 minute. 1 minute. Yes, chemical equation. Chemical equation. Have you placed the heading? Chemical equation. Good. Now write representation of chemical reaction using substances is called chemical equation. Okay, have you read? Now I will say how I can write a plus b gives c plus d. मैं मनाऊंगा भगवान से कि आप इसको देख पाओ. इसको आप देख पा रहे हो? तो इस तरह से लिखना है कि a प्लस बी गिव्स, ये जो लाइन है इसको कहेंगे गिव्स c प्लस डी. यहाँ लिटरली इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए समझने की कोशिश करिए. दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, और जो हम एक्सपेरिमेंट एग्जाम लेबोरेटरी में करेंगे उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टैंड इट? ओके, समझ में आ गया? एरो देखिए कि a प्लस बी गिव्स, यानी एरो उधर ही होगा जो बन रहा है. क्लियर है? ठीक है. नाउ a प्लस बी जो यहाँ पे है उसको कहते हैं रिएक्टेंट. मतलब जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट. और जो रिएक्शन के बाद मिलता है उन सब को कहते हैं प्रोडक्ट्स. क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्लियर है? रिएक्टेंट्स का दूसरा नाम होता है सबस्ट्रेट. क्या नाम होता है? सबस्ट्रेट. ओके, तो इस तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे. मैं समझ रहा हूँ कि इसमें समझ नहीं आया, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिखा हुआ रिएक्टेंट्स. क्या लिखा हुआ? रिएक्टेंट्स. और रिएक्टेंट्स के नीचे लिखा हुआ सबस्ट्रेट. और ये a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है. ये लिखा हुआ प्रोडक्ट्स. क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट्स. मैं स्पेलिंग बता देता हूँ. रिएक्टेंट का स्पेलिंग है REACTANTS. ओके, REACTANTS. एंड प्रोडक्ट्स का स्पेलिंग है PRODUCTS. PRODUCTS. क्लियर है? प्रोडक्ट्स. ओके, तो सबसे पहले हेडिंग छोटा सा प्लेस कर लेंगे रिएक्टेंट्स. क्या हेडिंग प्लेस करेंगे? रिएक्टेंट्स. लिखेंगे substances which take part in a chemical reaction is called reactants. REACTANTS slash substrate. 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 isn't it? ओके, अब वो जो एरो देते हैं ना उसको आप पढ़िएगा गिव्स. के प्लस बी ने दिया. क्या दिया? तो सी प्लस डी दिया. सिंपल है. एंड एरो को और कुछ नहीं पढ़ना होता है, एरो ही है वो. क्लियर है? एक्चुअली में वो बस दिखाने का तरीका है कि हमने किया तो ये इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये बना, एंड नथिंग एल्स. ओके, अच्छा, वो एरो दो तरह से हो सकता है. एक सिर्फ हम 9th में भी कर चुके थे. एक में क्या होता है कि a प्लस बी ने सी प्लस डी बन के रह जाना है, दोबारा वापस नहीं आना. एक क्या होता है कि a प्लस बी को आपने मिलाया और c प्लस डी बना लेंगे थोड़ी देर के लिए बना. जैसे ही वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर आपने बनाया था, वो पर्टिकुलर प्रेशर जो प्रेशर आपने दिया था बनाते हुए, जैसे इसको आप रिमूव करेंगे ना, फट से c प्लस डी सेकेंड के अंदर में a प्लस बी बन जाता है. तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल, सिंपल रिवर्स होने वाला रिएक्शन. जो रिवर्स नहीं हो सकता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन. isn't it? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेकेंड हेडिंग प्रोडक्ट.
new substances formed after a chemical reaction is called product. Have you written? Have. Now we will know some first of all we will understand what is the meaning of some examples I think we should take, right? Okay, first of all we will write what. Okay, I think we should know. 1 minute, I'm taking some time, sorry for this. I think this chemical equation जान गए, हम chemical reaction समझ गए कि क्या होता है. Now we will take some examples. Okay, now place the heading some example of chemical reaction. Some example of chemical reaction. Experiment number first. Experiment number first. The burning of magnesium in air to form magnesium oxide. Burning of magnesium in the air to form magnesium oxide. ये chemical reaction है. ये क्या है? chemical reaction. जो magnesium रिबन है ना, उसको आप अगर एयर में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. तो लिखेंगे, तो ये हमने क्या लिखा? केमिकल रिएक्शन नंबर फर्स्ट लिखा. अब लिखो केमिकल इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Mg, क्या बोला मैंने? Mg प्लस O2. आई थिंक इतना तो बुद्धू है नहीं, लिख लेंगे आप. Mg प्लस O2 गिव्स मतलब वही एरो, और एरो के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल. उस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट. क्या होता है? हीट. कम हीट देंगे तो बस ट्रायंगल बना देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर लिख देते हैं 400 केल्विन व्हाटएवर. हीट गिव्स MgO. इतना समझते हैं MgO क्यों बनेगा? क्योंकि दो वैलेंसी है. इस तरह से समझने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे, और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये Mg है प्लस O2. देख रहे हैं? गिव्स एरो के ऊपर ट्रायंगल, और लिखा मैंने कि ट्रायंगल क्या दिखा रहा है? हीट को गिव्स MgO. ठीक है, तो यहाँ लाइन खींच के लिख देंगे कि जो Mg है और O2 है, ये दोनों क्या है? लिख लेंगे नीचे सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है. क्या ये? रिएक्टेंट है. और ये जो MgO, इसका पहले नाम लिख लेंगे नीचे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये क्या है? ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? प्रोडक्ट. क्या होगा ये? प्रोडक्ट. समझ में बातें आ रही है? ओके. Mg के नीचे आपने लिखा ना रिएक्टेंट, उसके नीचे Mg के नीचे लाइन खींचे लिखे एज अ रिबन. इसको रिबन के रूप में लिया जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन तो फ्रॉम एयर से मिल जाएगा. और MgO को आप लिखेंगे ब्रैकेट में वाइट पाउडर. MgO के नीचे क्या लिखेंगे? वाइट पाउडर. ये वाइट पाउडर जैसा कुछ हमें मिलता है. क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें? एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने, अच्छा समझ में आ गया ना? Mg प्लस O2 लिखे क्या है? केमिकल इक्वेशन है. और जो हमने बताया ना कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या था? केमिकल रिएक्शन. अब क्वेश्चन क्या आता है कि बिफोर बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन व्हाई वी शुड क्लियर इट. क्यों क्लियर करना चाहिए? नहीं तो लिखेंगे, बाकी हम कल करेंगे. क्वेश्चन लिखिए इसके लिए, व्हाई वी क्लीन magnesium ribbon before burning. Write the answer. This is done to remove the protective layer of basic 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 magnesium carbonate. मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेंगे MgCO3 ब्रैकेट क्लोज from the surface of magnesium ribbon so that it may readily readily means होता है जल्दी से, combine with oxygen of air. लिख लिया आंसर? ओके. अब सुनिए मेरी बात. कह रहे हैं कि इसलिए जलाने से पहले रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को ना साफ किया जाता. वो नहीं आता शीशे वाला जिससे हम ग्रिल साफ करते हैं,
वोटेबल जो कहते हैं उसको, तो इसलिए करा जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जब रखा रहता है ना खुले में, ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो ऐसे भी आग कर लेगा, लेकिन अगर रखा रहता है ज़्यादा दिन तक तो जो एयर में प्रेजेंट है ना CO2, उससे वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है, और जो कार्बोनेट का लेयर है उसको जो जलने से रोकता है, किसको, मैग्नीशियम को। तो पहले हम रगड़ते हैं ताकि मैग्नीशियम को वो कार्बोनेट का वो लेयर हट जाए और जलाने में आसान हो। ठीक है, ये था पहला एक्सपेरिमेंट, ये पहला रिएक्शन। लेटर वी विल स्टडी लेटर। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय।